یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. منگل 20 جنوری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکہ خود غرض مقاصد کے حصول کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بطور بہانہ استعمال کرنا بند کرے. چین کا گرین لینڈ معاملے پر امریکہ کو انتباہ. We urge the U.S. to stop using the so-called China threat as an excuse to pursue its own interests. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی صدر پیوتن کو غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. جاپان کی وزیر اعظم کا ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان. 解散総選挙によって令和8年度予算の年度内成立は極めて困難になるのではないか. جانیے متحدہ عرب امارات کے صدر نے اپنے 3.5 گھنٹے کے دورہ انڈیا کے دوران کن معاہدوں پر دستخط کیے. Discussions were held both in the restricted format and then in expanded format where delegation members engaged with each other. اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالنے کے بعد محمود خان اچکزئی نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ایوان قرارداد منظور کرے کہ عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے. کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس یہ کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, غلطی ہوئی ہے. علامہ ناصر عباس سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. زور زبردستی اور بدماشی کے ذریعے آپریشن کیا گیا جو مسائل کا حل نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جرگے سے خطاب. تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے آئے ہیں, تو ان سے ابھی تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. شامی فوج اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات. کابل میں چینی ریستوران کے باہر دھماکہ, ایک چینی شہری سمیت 7 افراد ہلاک. برطانیہ میں کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے پر امام مسجد کو 3.5 ماہ قید کی سزا. یہ بھی جانیے کہ کیا پاکستان میں سست انٹرنیٹ کا حل 5G ٹیکنالوجی میں چھپا ہے. جو تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ 5G بھی رول آؤٹ ہو کے آپ کے استعمال کے لیے تیار ہوگا. انڈیا کے مشہور موسیقار AR رحمان کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان سے ملنا میری منزل تھی. تو ہی میری حرم میں فقیر ہے جان تیری گودام. سنیے آج کے سیربین میں وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. پاکستان کی انترراشٹریہ چھوی پہلے سے بہت بہتر ہے مگر ایران کو لے کے پریشانی بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. چین نے گرین لینڈ کے معاملے پر امریکہ کے موقف پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اپنے خود غرض مقاصد کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بطور بہانہ استعمال کرنا بند کرے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت قائم بین الاقوامی قوانین موجودہ عالمی نظام کی بنیاد ہیں اور ان کی پاسداری ضروری ہے. We urge the U.S. to stop using the so-called China threat as an excuse to pursue its own interests. یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے گرین لینڈ کے حصول کی مخالفت کرنے والے 8 یورپی ممالک پر بھاری محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ امریکی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ انہوں نے طاقت کے استعمال کے امکان کو بھی رد نہیں کیا۔ دوسری جانب یورپی اتحادیوں کا موقف ہے کہ وہ خطے کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، تاہم چین نے زور دیا ہے کہ تمام فریقین بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کے اصولوں کا احترام کریں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ 1 فروری سے برطانیہ سے امریکہ آنے والی تمام مصنوعات پر 10% ٹیرف
عائد کریں گے جسے جون میں بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک واشنگٹن اور ڈنمارک کے درمیان گرین لینڈ کی فروخت کے متعلق معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے کا اطلاق ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور فن لینڈ پر بھی ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ تمام ممالک دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ہیں جس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو امریکی تجویز کردہ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ خیال رہے کہ غزہ بورڈ آف پیس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کی تعمیر نو سے متعلق 20 نکاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ سوموار کے روز روسی حکام نے کہا تھا کہ روسی صدر کو بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی پیشکش موصول ہوئی ہے، تاہم نہ ماسکو اور نہ ہی ٹرمپ نے یہ بتایا کہ آیا پیوٹن نے یہ پیشکش قبول کر لی ہے یا نہیں۔ Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. And do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیوٹن کو یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے تجویز کردہ امن معاہدے کو قبول نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت دیگر اہم شخصیات اس کی رکن ہوں گی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ترکی، مصر، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے رہنماؤں کو بھی اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم کو غزہ کی تعمیر نو اور وہاں امن برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی۔ جاپان کی وزیر اعظم سانائے تکائچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعے کو پارلیمان تحلیل کر دیں گی جس کے بعد 8 فروری کو قبل از وقت انتخابات ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عوامی حمایت کو پارلیمانی اکثریت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ سانائے تکائچی نے ٹوکیو میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جو عوام کے ساتھ مل کر جاپان کی سمت کا تعین کرے گا۔解散総選挙によって令和8年度予算の年度内成立は極めて困難になるのではないか。جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو گزشتہ اکتوبر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے عوامی سطح پر بھرپور حمایت حاصل ہے، تاہم ان کی جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی رائے عامہ کے سروے میں پیچھے ہے اور یہ قدم ایک بڑا سیاسی خطرہ بھی ہے۔ یہ جاپان میں 2 برسوں میں دوسرا عام انتخاب ہوگا۔ سانائے تکائچی نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں عوام براہ راست فیصلہ کریں کہ کیا سانائے تکائچی وزیر اعظم کے منصب کے لیے موزوں ہیں یا نہیں۔ انتخابات کے لیے مہم 27 جنوری سے شروع ہوگی جس میں ایوان نمائندگان کے 465 ارکان منتخب کیے جائیں گے۔ ایل ڈی پی کے پاس اس وقت 199 نشستیں ہیں اور جاپان انوویشن پارٹی کے ساتھ اتحاد کے ذریعے حکومت کی جا رہی ہے۔ ٹی وی اینکر، گاڑیوں کی شوقین اور روایت پسند سانائے تکائچی سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی قریبی ساتھی اور برطانوی رہنما مارگریٹ تھیچر کی مداح سمجھی جاتی ہیں۔ انہیں جاپان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے معیشت کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈالنے کا وعدہ کیا تھا اور حکومتی اخراجات بڑھانے کی پالیسی اپنائی تھی۔ گزشتہ ماہ ان کی کابینہ نے $57 ارب کا ریکارڈ دفاعی بجٹ منظور کیا جسے چین کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے تناظر میں سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج قرار دیا گیا۔ سانائے تکائچی کے تائیوان سے متعلق بیانات پر چین نے سخت رد عمل دیا اور دونوں ممالک کے تعلقات ایک دہائی کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ دوسری جانب انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ جاپان کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی تعریف کی اور نایاب معدنیات پر معاہدہ کیا۔ A really great respect for the new and incredible Prime Minister. And I have to say this, the first female Prime Minister in the history of Japan. Madam Prime Minister, please say a few words.
राय आमा के जायजों के मुताबिक अगरचे LDP अवाम में गैर मकबूल है, लेकिन सनाई तकाइची और उनकी हुकूमत की हिमायत 60 से 80% के दरमियान है। माहिरीन के मुताबिक वो इस मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए पार्लिमान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करना चाहती हैं ताकि अपनी पॉलिसियों को आसानी से नाफिज कर सकें। ताहम ये फैसला खतरात से खाली नहीं। जापान में गुज़िश्ता 5 बरसों में ये चौथी वजीर आजम है और उनके पेशरो अवामी हिमायत खोकर और स्कैंडल्स की जद में आकर इक़्तिदार से बेदखल हुए थे। उनके पेशरो शेगर ने भी कबल अज वक्त इंतखाबात कराए थे, जिसके नतीजे में LDP को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत खोना पड़ी थी। अब एक नई मुत्तहिदा अपोजिशन भी सामने आ चुकी है, जिसे सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस कहा जा रहा है। ये इत्तेहाद आइनी डेमोक्रेटिक पार्टी और कोमेतो पार्टी ने तश्कील दिया है, जो पहले LDP की इत्तेहादी रह चुकी है। सनाई तकाइची ने कहा कि पार्लिमान की तहलील उस वक्त की जा रही है जब मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल निज़ाम कायम कर लिया गया है। उनका कहना था कि वो चाहती हैं अवाम उन पर एतमाद करें कि वो अपने वादे पूरे करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पीर को 3.5 घंटे के मुख्तसर दौरे पर इंडिया पहुंचे, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वजारत खारिजा के मुताबिक ये दौरा वजीर आजम मोदी की दावत पर किया गया और दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, तवानाई, दिफा और खित्ते की सूरत हाल समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। इंडिया के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में बताया कि दौरा मुख्तसर जरूर था, लेकिन इस दौरान कई अहम मुआहदों पर साइन किए गए हैं। इन मुआहदों में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी के फ्रेमवर्क, सिविल न्यूक्लियर ताउन, खलाई शोबे में मुश्तरिका मनसूबे और गुजरात के धौलीरा में खसूसी सरमायाकारी जोन के क़याम भी शामिल हैं। खलाई शोबे में दोनों ममालिक ने नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मुश्तरिका मिशंस और तरबियती मराकज कायम करने पर भी इतफाक किया है। तवानाई के शोबे में UAE ने इंडिया को सालाना 5 लाख मैट्रिक टन LNG फ्राहम करने का मुआहदा किया है, जिसके बाद वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG फ्राहम कुनिंदा बन गया है। इसके अलावा इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के दरमियान फरोख्त और खरीदारी का मुआहदा भी तय पाया है। Discussions were held both in the restricted format and then in expanded format where delegation members engaged with each other. A number of documents were also exchanged. विक्रम मिस्री ने मजीद बताया कि दोनों रहनुमाओं ने यमन में कशीदगी, गजा की सूरत हाल, ईरान और टैरिफ जैसे आलमी अमूर पर भी बात की। ताहम मुलाकात का ज्यादातर फोकस दो तरफा ताल्लुकात पर रहा। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने 2032 तक दो तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया कायम करने का भी फैसला किया गया है, जो एक सकाफती मरकज होगा। माहिरीन इस दौरे को मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब संभालने के बाद सोमवार के रोज अपनी पहली तकरीर में महमूद खान अचकज़ई ने ऐवान की मजबूती के लिए गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की और जो हुआ सो हुआ कहकर गलतियां सुधारने का मशवरा भी दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि पार्लिमान को मुल्क का मजबूत तरीन इदारा होना चाहिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सारे मुल्क के साथ ये वादा करती है कि ऐवान को मजबूत करने के लिए हमारी गैर मशरूत हिमायत हासिल होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सारे मुल्क के साथ ये वादा करती है, अगर ये हाउस इस हाउस को आप मजबूत करना चाहें, जब भी आपने इस हाउस की मजबूती के लिए काम किया, हमारा आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं है। अपोजिशन लीडर ने माजी की गलतियां और तलखियां भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा भी दिया और कहा, भले हुक्मरानी आपकी होती है दुनिया में गलतियां, बैठें सोचें, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन इट, बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने से, बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सियासी बदजुबानी का रास्ता रोकने की भी बात की और ये मशवरा दिया कि ऐवान में और ऐवान के बाहर ऐसी बातें ना की जाएं जो घर की खवातीन के सामने नहीं की जा सकती। ताहम उनकी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने ऐवान की एक करारदाद के जरिए जेल में कैद अफराद पर मुकदमात खत्म करने की बात की।
उन्होंने वाजे तो नहीं किया, लेकिन सिया को सबाक से यही मालूम होता है कि वो सियासी मुकदमात की बात कर रहे थे। महमूद खान अचकजई का कहना था, क्या आसमान गिरेगा अगर ऐवान ये करारदाद पास करे कि जिन बच्चों के खिलाफ केस हैं हमने सब खत्म कर दिए। क्या आसमान गिरेगा अगर ऐवान में करारदाद पेश की जाए कि जेल में कैद बड़ी उम्र की औरतों पर केस खत्म करके उन्हें छोड़ा जाता है। अपोजिशन लीडर का मनसब संभालने के बाद अपनी पहली तकरीर में महमूद खान अचकजई ने करारदाद के जरिए ही तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया। उनका कहना था, क्या आसमान गिरेगा अगर ऐवान कह दे कि इमरान खान इस मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा है, गलती हुई है, वो जेल में हैं, ये हाउस मुत्तफिक का फैसला करता है कि उन्हें जेल से निकाल दिया जाए। क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस ये कह दे कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है, वो जेल में है। वो दुख होता है ये जो अमेंडमेंट्स हुई, मैं तल्ख जुबान नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो अमेंडमेंट्स हुई 26 की, काश ये अमेंडमेंट इस हाउस की ताकत के लिए इस्तेमाल होती, इस हाउस को मजबूती के लिए इस्तेमाल होती, ये ताकत का चश्मा बनता। पाकिस्तान अब भी बहुत बड़ा बेहतरीन मुल्क है, अब भी देर नहीं हुई, आए इस हाउस को ताकत का। क्या आसमान गिरेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस रेजोल्यूशन पास करे कि ये हाउस रेजोल्यूशन पास करता है कि जिन बच्चों के खिलाफ केसेस हैं हमने सारे विड्रॉ कर दिए? क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस आपकी तरफ से, मेरे इन दोस्तों की तरफ से, साईं जखरानी की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश करे कि जो बड़ी उम्र की औरतें गरीब जेलों में बंद हैं, वी विड्रॉ देयर केसेस, वी रिलीज देम। आज अगर आप ये कह दें, आज अगर आप कह दें, क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस ये कह दे कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है, वो जेल में है, ये हाउस यूनानिमसली फैसला करती है कि उसको निकाल दो, जेल से निकाल दो। ये सारा टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, ये सारी बॉक्सिंग खत्म हो जाएगी। महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो सारा सियासी दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा, ये सारी बॉक्सिंग खत्म हो जाएगी। ताहम उनका कहना था, अगर ऐवान की करारदाद के जरिए इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं तो उनकी मुलाकातों पर लगाई गई पाबंदी फौरी खत्म की जाए। अहम बात यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की पहली तकरीर तकरीबन 30 मिनट लंबी थी, जिसे कौमी असम्बली के यूट्यूब चैनल पर नशर किया गया। ताहम इस दौरान उनकी आवाज़ 3 मौके पर म्यूट यानी बंद की गई। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों से सजाएं पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के 9 अरकान पार्लिमान को नाअहल करार दे दिया था, जिनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपोजिशन लीडर के मनसब के लिए महमूद खान अचकजई का इंतखाब किया था। स्पीकर कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाने का नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2026 को जारी किया था। तकरीर के दौरान महमूद खान अचकजई का कहना था कि उन्होंने कभी अपने वालिद का, अपने भाई का या किसी भी करीबी अजीज का हाथ नहीं चूमा, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर अपने हल्फ की ताबेदारी करें और आइन के दायरे में आकर पाकिस्तान के फौजियों की राहबरी करें तो मैं उनका हाथ चूमूंगा। इसके बाद उनकी तकरीर कुछ लम्हों के लिए म्यूट कर दी गई। आवाज़ दूसरी मर्तबा उस वक्त बंद की गई जब वो मुल्क में बदअमनी का जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने कहा, तमाम इख्तलाफ के बावजूद मेरा ईमान है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम, पाकिस्तान का, और इसके बाद आवाज़ म्यूट कर दी गई। तीसरी बार महमूद अचकजई की तकरीर तब म्यूट की गई जब वो कह रहे थे कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान दहशत गर्द ढूंढने के नाम पर सवात, वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में हजारों साल से आबाद अफराद को घरों से निकाला गया। दूसरी जानब कायम मुकाम सेक्रेटरी सेनेट हफीजुल्लाह शेख के साइन से राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों से सजाएं पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लिमान को नाअहल करार दे दिया था, और उनमें कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी शामिल थे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जोर जबरदस्ती और बदमाशी के जरिए किए गए ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं हो सकते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीर आला हाउस पेशावर में जिला खैबर के मिशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तीरा के मुतासरीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा और सूबाई हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। सुहेल अफरीदी के मुताबिक कबायली अवाम ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, लेकिन रियासत उनसे किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। वजीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए गए फैसले नतीजा खेज साबित नहीं होंगे। उनका कहना था कि 22 बड़े और हजारों छोटे ऑपरेशंस के बावजूद अमन की जमानत आज भी एक सवाल है। इसलिए तमाम सियासी कुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं। जिरगे में मिशरान ने अमन की बहाली और मुतासरीन की बाइज्जत वापसी से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की, जबकि वजीर आला ने मुतासरा खानदानों को फौरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी की। सामीन, इतवार को शाम ने कुर्द अस्करियत पसंदों के साथ एक मुआहदे की तस्दीक की थी और सरकारी तौर पर यह ऐलान किया गया था कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF के साथ एक मुआहदा तय पा गया है, जिसमें जंग बंदी और उसके अरकान को सरकारी अफवाज की सफ़ों में शामिल करना शामिल है। इस मुआहदे पर शाम के अबूरी सदर अहमद अल शारा और SDF के कमांडर मजलूम अब्दी ने दस्तखत किए थे। अब शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी सना ने यह खबर दी है कि शामी फौज ने पीर को होने वाली ताज़ा झड़पों में अपने 3 फौजियों के मारे जाने का इल्ज़ाम कुर्द अस्करियत पसंदों पर आयद किया है। ताहम कुर्द फोर्सेज ने मुल्क के शुमाल और मशरिक में उनके खिलाफ हमले शुरू करने का इल्ज़ाम सरकारी फोर्सेज पर आयद किया गया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF ने अपने एक बयान में फौज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ऐन ईसा अल शदादी, हस्का और रका में हमारे दस्तों पर वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। ये बात एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब शाम के अबूरी सरबराह अहमद अल शारा ने इतवार की शाम कुर्दिस्तान रीजन के साबिक सदर और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह मसूद बारजानी से फोन पर गुफ्तगू के दौरान शाम में कुर्दों के हकूक के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ और तय पाने वाले मुआहदों के मुताबिक तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक चीनी रेस्तोरां के बाहर धमाके में एक चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान के मुताबिक दारुल हुकूमत के इलाके शहर नौ में होने वाले धमाके के नतीजे में हलाक होने वालों में एक चीनी शहरी जबकि 6 अफगान शहरी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे हुआ। काबुल के इमरजेंसी अस्पताल के डॉक्टर्स ने BBC को बताया कि धमाके के बाद 20 जख्मी अस्पताल लाए गए थे, जिनमें 4 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस तर्जुमान खालिद जरदान का कहना है कि हलाक होने वाला चीनी शहरी मुसलमान था जो अपनी बीवी और अफगान पार्टनर के साथ चाइनीज नूडल का रेस्तोरां चला रहा था। उनके मुताबिक धमाका रेस्तोरां के बावर्ची खाने के नजदीक हुआ, जिसकी नौयत के मुतल्लिक अभी तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। दाइश ने मुबैना हमला आवर की तस्वीर भी जारी की है। बरतानिया की एक अदालत ने एक इमाम मस्जिद को कम उम्र मुस्लिम जोड़े का गैर कानूनी निकाह पढ़ाने के इल्जाम में 15 हफ्तों की कैद की सजा सुना दी है, जो 12 माह के लिए मुअत्तल भी कर दी गई है। ये निकाह नवंबर 2023 में नॉर्थहैम्पटन सेंट्रल मस्जिद में पढ़ाया गया था, जब लड़का और लड़की दोनों की उम्रें 16 बरस थी। 52 साला इमाम अशरफ उस्मानी ने अदालत को बताया कि उन्हें इल्म नहीं था कि इंग्लैंड में शादी की कानूनी उम्र कम अज कम 18 साल कर दी गई है। अदालत ने तस्लीम किया कि इस मामले में किसी किस्म का जबर या तशद्दुद शामिल नहीं था और दोनों नौजवान अपनी मर्जी से निकाह के लिए आए थे। अदालत को बताया गया कि जोड़ा पहले एक और मस्जिद में गया था, जहां कम उम्री के बायस निकाह से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद वो अशरफ उस्मानी के पास पहुंचा। इमाम ने निकाह पढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की और निकाह सर्टिफिकेट के लिए 50 पाउंड फीस भी वसूल की। अदालत के रूबरू वकील दिफा जेम्स ग्रे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अशरफ उस्मानी का निकाह पढ़ाने का 20 साल का तजुर्बा है और इस दौरानिये में ये उनकी पहली गलती थी। वकील दिफा ने मजीद कहा कि अरशद उस्मानी ने दोनों अफराद की तारीख पैदाइश चेक करने के लिए उनके पासपोर्ट तलब किए, फॉर्म पुर किया और मस्जिद के रजिस्टर में इस निकाह का बाकायदा इंदराज भी दुरुस्त तरीके से किया गया। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें वाज़े करती हैं कि वो यानी उस्मानी कानून में तब्दीली से लाइल्मी की बुनियाद पर यह गलती कर बैठे हैं।
अगर उन्हें कानून की तब्दीली का इल्म होता तो वो ऐसा ना करते। इस मौके पर जज ने अशरफ उस्मानी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका रवैया सिर्फ गफलत करार दिया जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए था कि कानून बदल चुका है। बाद अज़ा अशरफ उस्मानी अदालत के बाहर बगैर किसी तबसरे किए निकल गए। इस मौके पर उन्होंने अपने चेहरे को हाथों और स्कार्फ की मदद से ढांपा हुआ था। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट और बार बार सर्विस में खलल के तनाजुर में हुकूमत 26 फरवरी को 5G के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी कर रही है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस नीलामी के तहत 700 से 3500 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी 15 साल के लिए दी जाएगी और 5G को 2035 तक 3 मरहलों में मुतारिफ करवाया जाएगा। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक 2028 तक बड़े शहरों में 5G लॉन्च और 4G की कम अज कम रफ्तार 20 MB तक बढ़ाना लाजिम होगा हो, ताकि आप जब आप रेगुलर अपने काम कर रहे हैं तो 100 Mbps मिनिमम जो है वो आपको आप कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। आज 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 10 टाइम्स द स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये पिछले आज पाकिस्तान की 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट कर रही है। मैं अगर आपको सिर्फ बांग्लादेश की एग्जांपल दूं तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 वो 600 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो 8 लेन्स की ट्रैफिक है वो 2 लेन्स से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजेशन है, आपका इंटरनेट नहीं चलता, आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। माहिरीन का कहना है कि इजाफी स्पेक्ट्रम से इंटरनेट की रफ्तार और नेटवर्क क्वालिटी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब स्पेक्ट्रम खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। ताहम टेलीकॉम माहिरीन खबरदार करते हैं कि सिर्फ 5G लॉन्च करना मसले का हल नहीं। उनके मुताबिक मुल्क में 5G इस्तेमाल करने वाले फोन्स की तादाद इंतहाई कम है। बेशतर सार्फिन प्रीपेड और कम आमदन वाले हैं, जबकि सिर्फ 15% मोबाइल टावर्स फाइबर ऑप्टिक से मुंसलिक हैं, जो तेज इंटरनेट के लिए बुनियादी शर्त है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे 5G अलामती और मुस्तकबिल की जरूरत है, मगर फौरी तौर पर आवाम को फायदा देने के लिए 4G सर्विस को बेहतर बनाना, फाइबर नेटवर्क बढ़ाना और सस्ते स्मार्टफोन्स की दस्तयाबी ज्यादा अहम है। बसूरत दीगर खदशा है कि 5G एक ऐसी मोटरवे साबित ना हो जिस पर चलाने के लिए गाड़ियां ही मौजूद ना हों। इंडिया के मशहूर मूसीकार AR रहमान से BBC एशियन नेटवर्क के हारून रशीद ने हाल ही में तफसीली इंटरव्यू किया है। उन्होंने AR रहमान से पूछा कि आप एक ऐसे जमाने में काम कर रहे हैं जहां लोग तकसीम हैं, क्या अब वो ज्यादा मोहतात होते हैं किसी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते हुए, और ये कि उनकी नुसरत फतेह अली खान से होने वाली पहली और आखिरी मुलाकात कैसी थी। इन सवालों के AR रहमान ने क्या जवाब दिए, आप भी सुनिए। यही वजह है कि खुदा ने हमारे जैसे लोगों को ज़्यादा इख्तियार दिया है, ताकि हम अपने अल्फाज से, अपने अमल से, अपने आर्ट के ज़रिए बुराई को अच्छाई से बदल सकें। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने काम के इंतखाब में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए? क्योंकि 10-15 साल पहले जब आप किसी फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाते थे तो आपको बड़ी हद तक मालूम होता था कि वो कोई मनफी फिल्म नहीं है या इस फिल्म के पीछे बुरी नीयत नहीं है। आज किसी फिल्म का मकसद मालूम करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। That's true. हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल सच। कुछ फिल्में ख़राब नीयत से बनाई जाती हैं। मैं ऐसी फिल्मों से बचने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा था कि आपको फिल्म छावा के साउंड ट्रैक पर बहुत फख्र है। ये वाकई बहुत अच्छा साउंड ट्रैक है, लेकिन ये फिल्म तफरका पैदा करती है। It is divisive. ये फिल्म डिवाइसिव है। मेरा ख्याल है कि इसने इसी तफरके से फ़ायदा उठाया है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद बहादुरी को दिखाना था। मैंने डायरेक्टर से पूछा था कि आपको इसके लिए मेरी ज़रूरत क्यों है। उन्होंने कहा ये काम सिर्फ आपसे कराना है। मैंने इस काम को एंजॉय किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग समझदार हैं। आपके ख्याल में क्या लोग फिल्मों से मुतासिर होते हैं? मुझे अपने अंदर से ये मालूम है कि सच क्या है और हेरा फेरी क्या है। My problem with a film like that. इस तरह की फिल्मों से मुझे ये मसला है कि इनमें जब भी कोई मनफी काम दिखाया जाता है तो वो किरदार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी घिसी पिटी बात है। But it exists. मगर ये इस फिल्म और दूसरी फिल्मों में है। I'm just saying, I have great respect. मैं लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि गलत मालूमात से मुतासिर हो जाएं। मुझे इंसानियत पर बहुत भरोसा है। मुझे महसूस होता है कि लोग बहुत ज़हीन हैं। उनके अंदर ज़मीर है, दिल है, मोहब्बत है, हमदर्दी है,
लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज मुझे कितने लोगों से नफरत करनी है। नहीं, ये तो किसी के दिल में तेजाब की तरह होगा जो आपके दिल को बर्बाद कर देगा। दिल तो वो जगह है जहाँ खुदा का मुकद्दस घर होता है, जिस खुदा को आप भी मानते हैं, लेकिन असल सच तो दिल में होता है। यहीं आपकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। जैसे नुसरत साहब से मिलना मुझे लगता है जैसे मेरी मंजिल थी, एक गैबी मदद। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमने नुसरत साहब के साथ गाना रिकॉर्ड करवाया और 1 महीने बाद वो दुनिया से चले गए? आपको इनसे मिलने का मौका मिला, और अगर ये उस वक्त ना होता तो फिर कभी ना हो पाता। नहीं, क्योंकि मैंने तो उनसे कई चीज़ें सीखी जब वो मुंबई आए। मैं बस उनके पास बिला रोक टोक चला गया, उनके कमरे में चला गया। रात का 1 बज रहा था और फिर वो आए और बैठ गए, और फिर हर दरवाज़ा खुल गया, हारमोनियम आ गया, तबला आ गया, और उन्होंने मुझे कुछ कवालियाँ सिखाई। आपको याद है वो कौन सी कवालियाँ थी? I think that's तू कुछ मनुजा। तू ही मेरी हरम मैं फकीर जाऊं तेरी गोनाउन तेरे आगे अदा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।